Welcome to MJC Learning. In our session of 12th SP, today we are going to start with a new topic, chapter number 1, Introduction to Corporate Finance. In that, we will study about meaning and importance of corporate finance. Come, let's proceed with meaning of corporate finance. As I told you, corporate finance means the business finance. This year's text has used the word corporate finance because now we are in the corporate world where business is more important. Now, success of a business, हर business successful होना चाहिए. बट वो सक्सेस किसके ऊपर डिपेंड है? डिपेंड्स अपॉन money, capital. So success of an organization depends upon the efficiency with which it is able to generate and use fund. किस तरह हम कैपिटल निकाल सकते हैं और उसे किस तरह यूज करेंगे, उसके ऊपर ही हमारा बिजनेस डिपेंड है. तो द सक्सेस ऑफ बिजनेस डिपेंड्स अपॉन जनरेट एंड यूज फंड. जनरेट, निकालो पैसे पब्लिक से और उसे यूज करो. हेनरी फोर्ड ओनली यूजेस टू वर्ड्स, मनी इज एन आर्म और लेग. आर्म यानी हाथ, लेग यानी पैर. ये दोनों है तो बिजनेस चल रहा है, काम हो रहा है. पैसा है तो काम हो रहा है और बिजनेस चल रहा है. सो मनी इज एन आर्म और अ लेग. यूज इट और लूज इट. अच्छी तरह से यूज किया तो चलेगा बिजनेस, नहीं तो गवा दोगे. सो मनी इज एन आर्म और अ लेग. सो फाइनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सक्सेस ऑफ बिजनेस. यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज इंपॉर्टेंट? फाइनेंस. Now we see the definition given by Henry Hoagland. What he says: corporate finance deals mainly with acquisition and use of capital by business corporation. Acquisition means to acquire, to get the capital. कैसे लोगे कैपिटल, कहाँ से लाओगे और उसे अच्छी तरह यूज करना. ये दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट है. Acquisition and use of capital. So Henry very clearly says corporate finance means what? Business finance. How the business will acquire the finance and how the business is going to use the capital. आप कैसे यूज करोगे वो पैसे को. Suppose your father is giving money to your mother. Mother has acquired money from father. Now the house can run very successfully, depends upon how she uses it. किस तरह वो यूज करते हैं. अच्छी तरह से यूज करेगा तो घर बहुत अच्छी तरह से चलेगा. सो हेनरी फेयोल ने इंपॉर्टेंस दिया है दो ही शब्द, एक्विजिशन एंड यूज ऑफ कैपिटल. कम लेट्स गो टू इंपॉर्टेंस. द फर्स्ट पॉइंट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग. सी पैसा है तो सब कुछ है. Decision depends upon availability of funds. I have to decide something. I want to go out for a picture, but I will just check availability of funds. पैसा है तो मैं decide करूंगी पिक्चर जाने का. So every decision in a business depends upon funds, and that fund should be used in business and the business should be profitable. जो भी फंड हम बिजनेस में यूज करेंगे वो प्रॉफिटेबली चलाना है बिजनेस को. अगर वो अच्छा चलता है तो हम वो बिजनेस को और आगे चलाएंगे और ग्रीन सिग्नल बोले. ग्रीन सिग्नल मींस चलो कैरी ऑन द बिजनेस बिकॉज इट इज रनिंग वेरी नाइसली. सो फाइनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ बिजनेस. Finance is important. If finance is there, there is profitability. If profitability is okay, if it is running in very nicely with profit, but natural, we will say carry on the business. So carry on the business means a businessman gives a green signal to the business.
The second point says raising capital. पैसे कहाँ से निकालना है? कहाँ से निकाल सकते? Only 2 or 3 words you can say. Shares, debentures, bonds, public deposit. ये सब से आप पैसे को ला सकते हो. So capital can be raised by issuing of shares, debenture and public deposits. Helps in research and development. See, research, every business does research. Research यानी छानबीन करना. हमारा बिजनेस कितना अच्छा चल रहा है, मार्केट में कितने लोग हमारे प्रोडक्ट को खरीद रहे, इसके बारे में आपको रिसर्च करना है. ओके, अगर आपने रिसर्च किया और आपको पता चला कि लोग ले रहे और अच्छी तरह से चलाना है, आपको ग्रोथ एंड एक्सपांशन करना है. सो फॉर दैट यू रिक्वायर रिसर्च, एंड फॉर रिसर्च you require financial support. See, mobile phone, we are having the latest mobile phone. Olden days, 10 years back you go, that time you had Nokia, very big Nokia, a long डब्बा type you had. Then उन्होंने रिसर्च किया कि हमारी कंपनी जो नोकिया की है वो नया प्रोडक्ट लाना चाहिए और अच्छा आना चाहिए. Today we are having the thinnest mobile, the delicate mobile with various facilities. बहुत सारी चीजें उसके अंदर है. सो हर कंपनी को अपग्रेड करना है, यानी नए कुछ बनाना है, प्रोडक्ट में नया कुछ लाना है, तो ही पब्लिक अट्रैक्ट होता है. द सेम वड़ा पाव यू डोंट लाइक, टुडे यू आर हैविंग बर्गर, यू हैव पिज्जा. यस, सो कंपनीज ट्राई टू अट्रैक्ट द कंज्यूमर्स. फॉर दैट क्या होना चाहिए? रिसर्च एंड डेवलपमेंट. नेक्स्ट पॉइंट, स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस. स्मूथ यानी अच्छी तरह से बिजनेस को चलाना. फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस क्या चाहिए? कॉर्पोरेट फाइनेंस चाहिए. पैसा आता ही रहना चाहिए, तो ही वर्कर को पैसा मिलेगा टाइम पे, लोन भरेंगे हम टाइम पे, रॉ मटेरियल खरीद पाएंगे, एडवर्टाइज कर पाएंगे. पैसा ही नहीं है तो वर्कर को सैलरी नहीं, देन लोन भरेंगे नहीं, रॉ मटेरियल आएगा नहीं, एडवर्टाइजमेंट नहीं होगा. So for a smooth business, for a smooth running, we require finance for salaries to the employees, for paying the loans, for purchasing raw material, and for sales advertisement. Let's proceed further. Coordination. Coordination means मिलजुल कर. See, in business, all activities are to be coordinated. Business में सारे एक्टिविटी मिल के काम होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, प्रोडक्शन कुछ करना है, मान लो प्रोडक्शन करना है, उसके लिए पहला फाइनेंस चाहिए. फाइनेंस डिपार्टमेंट पहले आगे आएगा. हाँ, पैसा है तो हम प्रोडक्शन कर सकते हैं. अब वो फाइनेंस डिपार्टमेंट फिर जाएगा रॉ मटेरियल खरीदने के लिए. रॉ मटेरियल है तो प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होगा तो बाहर सेल्स होगा. यानी हर डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, सब डिपार्टमेंट मिलजुल कर काम करता है. सो ब्रिंग्स कोऑर्डिनेशन. पैसा है तो हर डिपार्टमेंट मिलजुल कर काम कर सकता है. पॉइंट 6, एक्सपांशन यानी बिजनेस को बढ़ाना. बढ़ाने के लिए हम मॉडर्न मशीन्स एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी लेकर आते, तो ही हमारा बिजनेस बढ़ सकता है. सी, इफ यू गो टू ओल्डन डेज कंस्ट्रक्शन में, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में सब कुछ हाथ से किया जाता है. वो ईंट उठाना, मट्टी उठाना, वो मिक्सिंग करना, सीमेंट और मट्टी और रेती को मिक्स करना, देन उसे वो साइट पे लेके जाना, ये सब हाथ से होता था, ह्यूमन से. बट आज वो कंस्ट्रक्शन साइट में ग्राइंडर है, लिफ्टर है, क्रेन्स है, जो सारे पत्थर और रेती को मिक्स और सीमेंट को मिक्स करता है मशीन में, और मशीन ही वो जहां डालना है वहां डालने का भी काम करता है. दैट मीन्स आज हमारा जो बिजनेस है कंस्ट्रक्शन का, वो बढ़ते ही जा रहा है बिकॉज ऑफ मॉडर्न मशीन एंड मॉडर्न टेक्निक. नया मशीन है हमारे पास, बड़े बड़े मशीन है, ग्राइंडर्स है, जिसके वजह से आज बिजनेस बढ़ रहा है. सो एक्सपांशन डिपेंड्स अपॉन finance brings modern machines. Managing risk. In business there are lot of risk, जैसा अभी का कोरोना रिस्क. All business have come to a standstill. और भी कौन सा रिस्क है? स्ट्राइक्स भी आएगा तो भी बिजनेस स्टैंड स्टिल.
नेचुरल कैलामिटी लाइक अर्थक्वेक, फ्लड, फैमिन, तभी भी बिजनेस में रिस्क है. बट उस टाइम पे क्या होना चाहिए? फाइनेंशियल एड, मनी होना चाहिए. तो हम ये सब रिस्क से दूर हो सकते हैं. ओके, लेट्स प्रोसीड फर्दर. Replace old asset. Old machine is to be removed and brought out. Outdated machine is to be removed, and instead of that old we have to bring a new one. If you bring a new machine, the production will be more. बट ये न्यू मशीन लाने का, ओल्ड मशीन को हटाने के लिए भी फाइनेंस इज रिक्वायर्ड. विदाउट फाइनेंस आप ओल्ड को हटा के न्यू नहीं ला सकते हो. यस, सो फॉर एग्जाम्पल टाइपिंग मशीन ऑफ ओल्डन डेज का टाइपिंग मशीन और आज कंप्यूटर में हमारा सारा टाइपिंग्स होता है इलेक्ट्रॉनिक. यस, टेक्नोलॉजी है वो. प्रिंटिंग भी मशीन में होता है सब. टुडे इन अ कंप्यूटर एट अ टाइम यू कैन गिव सो मेनी कमांड. 20 letters, तो 20 letters can be printed one at a time. So ये old को हटा के नए मशीन को हमने लाया है. That means उसके लिए हमें क्या चाहिए? Finance. Now payment of dividend, 9th point. See, as I said, corporate finance यानी business finance आया कहाँ से? By selling our shares, debentures, bonds. बट ये शेयर जिसने भी लिया है उनको शेयर होल्डर बोलते हैं. उनको हमें क्या देना पड़ेगा? डिविडेंड. हमने जो डिबेंचर बेचा है, फॉर दैट वी हैव टू गिव इंटरेस्ट. यस, वी हैव टू गिव इंटरेस्ट टू द बैंक आल्सो इफ यू हैव टेकन लोन. सो फॉर दिस ऑल, to pay dividend, to pay interest, we require finance. So finance is the arm, finance is the leg. These two words, arm and leg, हाथ पैर. फाइनेंस हमारे हाथ पैर है, इसके बिना हम बिजनेस को नहीं चला सकते हैं. So finance is required to pay dividend and interest. The next one and the last, payment of tax. See, we have to pay tax to the government. Goods tax, income tax, service tax. फिर रजिस्ट्रार को भी फीस देना पड़ता. ये सब टैक्स भरने के लिए भी वी रिक्वायर फाइनेंस. फाइनेंस इज नीडेड फॉर पेइंग टैक्स. अगर फाइनेंस नहीं तो हम टैक्स नहीं भर पाएंगे. यस, सो पेमेंट ऑफ फीस एंड टैक्स. कंपनी हैज टू पे वेरियस टाइप्स ऑफ टैक्स like income tax, goods and service tax, then fees to the registrar. For these all we require finance. Okay, so this is the end of the topic of today's topic. One thing I'll tell you, you have to just remember that finance is the arm and leg. Without this two, a company cannot run. A company cannot run without finance. So company Henry very clearly says finance is an arm and leg. Okay, so just remember that. What is corporate finance? Finance needed for business is called corporate finance, and this is very important. Okay. We'll see in the next topic. Thank you, students.